Well, there's a lot of heat. We are all putting up with it, but this too shall pass. ऐसे उम्मीद में हम है कि ये गर्मी भी निकल जाएगी, फिर और अच्छे दिन आएंगे मौसम के हिसाब से. तो यस, आई कैन सी हमारे रामन सर हाथ से फैन कर रहे हैं अपने आप को गर्मी में. So that is heat. This time I think it has been a little strong, and there has been a threat that वो 42 45 तक जाएगा कहाँ. So we have got to be prepared, and जहाँ तक हो सके we have got to take precaution, given that we are all 60 plus people. तो जितना कम बाहर निकल सके धूप में अवॉइड करें, and if it is a must then only get out. नहीं तो शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद चलते हैं, बाहर निकलना है तो. So that is वही अच्छा होगा. So now coming to the topic for the day, for this evening, quite a few things came to my mind. Since we are all in our 60s, 60 plus, some are touching. Raman ji to ekdam hamare veteran senior most हैं, though he looks very young. So given all that, we thought we will talk about some of the challenges that senior citizens face, and also how those challenges can be countered. कई कई लोग बोलते भी हैं ओल्ड एज इज ए कर्स. बहुत लोगों को गंदा फील होता है ओल्ड एज में, क्योंकि शायद वो लोग नेग्लेक्टेड लगता है उनको, आइसोलेटेड लगता है. बच्चे लोग इधर उधर निकल गया, हाथ से निकल जा चुके हैं, एंड लोनलीनेस आता है. एंड अगर बाई चांस एक पार्टनर चला भी गया तो और भी जमाने में सबसे दुखद है. तो ऑल दिस थिंग्स, एंड देन हेल्थ इश्यूज आते हैं कुछ ना कुछ. हाउ कैन वी मिनिमाइज हेल्थ इश्यूज? तो आएंगे, थोड़ा इधर उधर तो होता ही रहता है. विद एज हमारा भी तो वेयर एंड टेयर होता है बॉडी में. And also the care homes that we are now, they are becoming very popular. There's a difference. Pensioners home hai, care home hai, old age home hai. There are different they are not necessarily synonymous, but उसमें काफ़ी कुछ similar है. कोई एकदम पॉश जैसा है, कोई तो एकदम neglected people के लिए. Old age home typically what I have seen is at least जिनको छोड़ दिया है बच्चों ने और वो लोग अकेले हो गए हैं, somehow they have come into किसी एक शरण के लिए आ गए हैं, वैसे उनका लिविंग इज वेरी डिफिकल्ट. बट देन देयर आर पीपल हु डू इट आउट ऑफ चॉइस, क्योंकि अकेले रहते नहीं बनता है. समटाइम्स इफ अ पार्टनर इज गॉन देन देयर आर इश्यूज दैट कुड कम, कैसे रहा जाए. तो आई थॉट वी विल डिस्कस अबाउट दिस. एंड इफ देयर आर एलमेंट्स, कुछ ना कुछ आ जाता है कि बैक एक आता है, सर दर्द आता है, for we have doctors also in our group, but then sometimes we have seen that opportunity milte hi some of these hospitals make sure that they increase their revenue by suggesting surgery at the drop of a hat. ये भी हमने देखा है, because this point I had raised also in one of the programs on Saturdays evening. So मुझे तो लगता है कि what are the things, what precautions can we take as seniors, as we age, as we face challenges, and what kind of challenges are there, and how can some of those things countered, mitigating that risk. All these things is what I felt. हम आज बात करेंगे. हिंदी में अंग्रेजी में दोनों भाषा चल जाता है इधर. So who would like to set the ball rolling? Raman sir. Yes, sir. We would like to get maximum wisdom from you, sir. Yeah, no, sorry. Did I hear you right? You were saying some restriction on talk time? No. Go ahead. We are about 8-10 people. We have got an hour to spend. So you. Okay. Anyway, I will try to moderate myself. We see, talkativeness is a sign of old age. So I am being the oldest member. I think I will be the talking most. That is some sort of ailment, you can say. No, I disagree.
I disagree. We are into some professions where we have to talk. Yeah. Now, we will say, if you want to start with the problems of old age. Strangely, I did a program last week for Dignity Foundation on joys of old age. It was done in 2 sessions, lasting over 1 hour almost. There was no time for discussion. All the free meetings came to an end before as soon as the show was over anyway. Well, that is beside the point. Now we are discussing the problems of old age. Problems of old age, as I see it, you have to categorize it into 3: physical, financial, mental. Yes. Now, we will take only the physical aspect. If you take the physical aspect, there are again 2 categories. One is serious. That is major. The other is minor. I have a minor problem. My lungs are not very strong. I have constantly, with the least amount of exertion, I pant for breath. Somebody may have undergone a few surgeries. They may they have to use crutches for moving about. So now, as far as the major problems are concerned, there is no scope for discussion. You go to a competent doctor, you take his advice and follow it, end of the matter. On minor issues, there are various avenues. You can bear with it. You can go for home remedies. You can buy on over-the-counter medicines. You can take advice from friends. There are so many avenues. As for the other, we are now limiting our discussion to sickness, illness only. Am I right? Health issues only. Challenges in any form. You have taken the physical. So the challenges. Yeah. The next is, I would like to say, in this, pain is real. Suffering is imaginary. Imagine. See, pain. I hit my hand. It pains. There is very intense pain. But if I go mentally on a tangent saying, why this should happen to me? I am 84 years old. Why God is punishing me like this? Why this job was not done by my wife or my son or my daughter or whatever? I try to shift the blame and they become miserable in the process. Now, this mental aspect of suffering caused by pain, we should understand it is our own making, and with some good sense, it is easy to come out of that if you are sensible, if you are able to analyze what exactly I am sorry about, what is my sadness, what is my sorrow. If you look at this pain, you go, if you are a pain, you go and get some medicines, some ointments, some sprays, whatever. So if you deal with this on the side, if you deal with your psychological difficulties or problems, there you have the chance of some introspection and come out of that sorrow. Pain you cannot. Pain, you have to deal with it in a very different footing. And this is what I would like to say for this talk. Okay. Thank you, Raman sir. That was definitely very useful. Categorization aspect that you mentioned is a perfectly well received. I also feel that similarly we do a lot of SWOT analysis in our professional life, and we say that okay, what is must have, good to have, and nice to have. You categorize for all the things. So similarly, you have very beautifully said that these are the 3 categories, and out of which, okay, let's talk about one specific area. Now, you also mentioned that about pain. Now, physical pain is one, and there are certain ailments which really very is intriguing. We would like to, if there are people who have got constantly some headache is coming or constantly some backache is there,
Has any of you, or would any of you be able to tell us as to how it has been handled in case you have gone through once? Yeah, go ahead, Raman sir. Just 2 days back, I am out of some severe shoulder pain. I was not able to lift my right hand above my waist level. If I lifted it, I had very intense pain. Okay. It came because I was reading a book with this big, some 900 pages of thick paper, Okay. weighing something like 2+ kilograms. Oh. I used to put it above a shelf. I took the book and put it there for a couple of days, some 5 or 6 times. So could not be. And somebody said, frozen shoulders come at old age. You got frozen shoulders, you learn to live with it. So if I decide to learn to live with it, I do live with the pain, just keeping my arm in a no pain position and go to sleep, then get pain, then wake up. All this. Well, I said I will go to a doctor. I will see what he has to say. If he says frozen shoulders, you melt it. We will try to melt it, or live with frozen shoulders, we will live. And what the doctor said was, put your arm in a sling for 7 days, take painkiller if you have pain, and come back after 7 days. Well, I put my arm in a sling, and in 5 days, the pain vanished. Now I can lift my hands just like that. So I had a painkiller as well with it. You understand? I took only 3 out of 10 painkillers I bought. Okay. So this is the solution. You see, once somebody very reliable in our estimation says it is a frozen shoulder, common for old age, you have to learn to live with it. We can either take it and live with it, or we can get a second opinion and try to cure it. Correct. Thank you. Okay, thank you, Raman sir. That was very useful for us. Who would like, Dr. Sarla ji, आप कुछ बोलना चाहेंगे, because this is the topic you will be more familiar with, being a doctor. आपकी कोई टिप्पणियां इस सिलसिले में? टिप्पणियां तो क्या कि इतना तकलीफों का अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जो पिताजी थे, उनकी डेथ हुई 87 इयर्स एज में, और मेरी मम्मी तो बहुत साल पहले चली गई थी। पिताजी अकेले रहते थे और वो समाज सेवक थे। पहले तो वो बुदान चलवल में थे, विनोबा जी के फॉलोअर थे, और बहुत लोगों की, बहुत जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको मदद की जरूरत है, जिनको न्याय की जरूरत है, तो उन्होंने अपना, हम 4 बहनों ससुराल चली गई, बेटा भी दूर, मम्मी चली गई, अकेले पिताजी रहते थे, लेकिन वो इतने पावरफुल थे मेंटली और फिजिकली, उनको कि वो बस, उनका लाइफ भी बहुत ही नियमित जीवन था, लेकिन वो किसी ने बोला, वो बोले कि नहीं, हमें आपके साथ नहीं रहूंगा। हमने बोला कि नहीं, क्योंकि वो सोशल एक्टिविटीज, आरटीआई एक्टिविटी वगैरह के थे, तो बोले कि अब हमारे एरिया में अगर मैं वहां आके तो मैं वो एक्टिविटी किए बिना नहीं रह सकूंगा, तो आप लोगों को तकलीफ होगी, आप लोग शांतिपूर्वक जीने वाले हैं बच्चे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो किसी ने बोला कि अच्छे अच्छे आश्रम है। पिताजी ने बोला मैं अपने घर कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो पिताजी ने पूरा घर दूसरों को, फैमिली वाले को रहने देने लगे, पूरा किराया नहीं लेना, सब कुछ यूज करना। वो बोले कि मैं दूसरों को अपने घर में रख के, और वो लोग, उनका ऐसा नेचर था कि सभी उनको ऐसे अपने, क्या बोलते हैं, वडील या बुजुर्ग, हाँ, अपने उसी तरह उनको संभालते थे। वो इसीलिए कि मैं रहता हूँ कि तुम लोगों को कभी मेरी चिंता न रहे, हमने कभी भी, और वो इतना सेवा में खुपे हुए थे, और हेल्थ इतना चलते थे, और बचपन से उन्होंने बहुत मिल्क लिया था, और धूप तो वो एक पूरे
8-10 किलोमीटर वो सनलाइट में भी चल 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 के ही सब जगह जाते थे। लेकिन उन्होंने जो जीवन बिताया दूसरों के लिए, पूरा जीवन उन्होंने जिंदगी दी, तो वो आराम से जी सके और आराम से वो इतने गीता जी के ऊपर फॉलोअर थे। उनको सुबह भी वो दूसरे के काम के लिए गए थे और वापस आके उनको ऐसा लगा कि लो बीपी हो गया है, तो वो चलते चलते किसी के वो बोलते हैं उसको, क्या हम गुजराती में ओटला बोलते हैं, वहां पर बैठ गए। तो अच्छा। वो लोग समझ गए, तो उन्होंने पिताजी को घर पे सुला दिया और हमें फोन किया। फोन तो रखते थे सभी लोग। तो हमने बोला कि पिताजी का बीपी लो हो गया होगा एज के हिसाब से, तो हाँ। आप उनको पिलाइए और डॉक्टर को बुलाइए, हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब पिताजी को नहीं रहने देना है। तो वो तो बस ऐसे ही जैसे अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर में वो बोलने लगे। उन पहले उनका ये मंत्र था, हरिओम हरिओम, हाँ। वो पूरा जीवन। तो सब उठा के हमारे पिताजी के घर नजदीक था, वहां ले गए और हमारे हमारे साथ बोले, दूसरे सब आ गए आसपास वाले और घर में रहते थे कि आप चिंता मत कीजिए, निकलिए, अब पिताजी को कुछ अच्छा लगेगा तब हम पोरबंदर पहुंच जाएंगे, आप वहीं पर पहुंच जाइए। और पिताजी को पता चल गया था, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने इस तरह बिताया था। वो पहले तो बोलते थे कि कृष्ण भगवान जैसे 120 साल जिए थे, मनुष्य की आयुष्य 120 साल है, इसीलिए अगर अच्छी तरह जीवन जिए तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उनको पता चल गया होगा कि मैंने जब फोन किया, भैया ने बोला कि पिताजी देखिए सुनिए आप, वो बोल रहे हैं, लेकिन वो राम हरिओम से अचानक हे राम पर आ गए थे उस टाइम। हाँ, तो हमने कानों से सुना। उन्होंने बोला, देखिए चाचा जी, सरला बेन का फोन है। वो जब भी फोन कोई बोले तो वो तुरंत उनके हाथ में से ले लिया, लेकिन उन्होंने गर्दन हिलाई, लेकिन हे राम नहीं छोड़ा। मैंने बोला उनको नींबू पानी या कॉफी ऐसा गर्म करके पिला दीजिए, तो वो पिला रहे थे। तो पीते पीते बैठे कि बस अब मुझे लेटना है। वो लेट गए, हे राम करके आंखें मूंद कर गई। हमने कानों से भी सुना उनका हे राम, लेकिन उनको पता चल गया कि मेरा अंत समय आ गया है। तो उन्होंने हमारा मोह छोड़ दिया, फोन हाथ उन्होंने लंबा नहीं किया फोन के लिए, और नहीं कुछ कुछ भी जैसे। लेकिन तो हमने ये प्रेरणा मिली है पिताजी से कि दूसरों के लिए अगर अकेले हो गए हो तो भी दूसरों के लिए वो इतना खुश, कभी उनको हमने उदास नहीं देखा है। तो हाँ, और हम तो सर यहाँ पर बच्चे, अब हम 20 साल से हम दोनों अकेले ही हैं घर पर। बच्चे पढ़ाई करने गए, उसके बाद उनकी शादी हो गई, शादियां हो गई, उनको उसको भी 20 साल हो गए। तो सभी को ऐसा लगता है कि आप लोग कैसे रह सकते, लेकिन कभी अकेलापन भी महसूस नहीं होता है दिल को। बिजी तो है हम अपने वर्क में, लेकिन फ्रेंड्स, मित्र जरूर होने चाहिए किसी भी उम्र में, सभी के साथ में। तो मित्रों से हमको मित्रता से उनसे बात करके उनको अपने घर बुलाइए। हम कुछ कुछ तो स्कूल फ्रेंड्स ऐसी है कि जो हम हर साल वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाती हूँ। लेकिन अभी आना जाना कुछ कम हुआ है जाना, लेकिन नहीं तो हर साल जाते थे। बाकी सभी सभी के साथ आनंद से प्रेम से मिलते रहे। हेल्थ अभी तो कुदरत अच्छी है, ऐसा कोई हम क्या गर्व नहीं है कि हमें कुछ तकलीफ नहीं है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा ये ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो गया है, और वो जो है वो हेरिडिटरी है। मेरे ससुर जी को भी था, मेरे जेठ जी को भी था। तो डॉक्टर साहब तो इतने पॉजिटिव है, वो अपना ड्रॉप्स नियमित अपने हाथ से ही डालते हैं। फिर भी उनको कुछ तकलीफ हो गई थी रेटिना इंफेक्शन से, लेकिन उनका बहुत पॉजिटिव व्यू है, तो मुझे चिंता नहीं हो रही है कि क्या करेंगे, क्योंकि इतना कंट्रोल में तो रखते हैं। एक बार ऑपरेशन करवाया ग्लूकोमा का, तो पता नहीं था बड़ौदा में कि ओपन स्कार है, तो इन्फेक्शन का या कंजक्टिवाइटिस का ध्यान रखना चाहिए, वो डॉक्टर ने बोला नहीं था, और मेरा कोई विषय नहीं था हमारा। तो उसके 1 साल बाद उनको कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो फिर बड़ौदा दिखाया यहाँ आई स्पेशलिस्ट को, तो बोले कि अरे साहब
आपने इतने दिन क्यों निकाला था, तो 1 वीक ही बड़ौदा जाएंगे, यहाँ ड्रॉप डाल रहे थे डॉक्टर ने के, लेकिन उनका ओपन स्कार से रेटिना तक पहुंच गया इन्फेक्शन। तो ऐसे देखा तो बोले कि अब ये रेटिना स्पेशलिस्ट का केस हो गया, ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट का नहीं है सर, आपको वहीं पर जाना होगा। तो वहां गए, उन्होंने भी बोला कि आपका ये तुरंत विट्रेक्टोमी करवा देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब माने नहीं थे, क्योंकि इसमें क्या है, वो तो आप मेडिसिन से क्लियर हो जाएंगे, इंजेक्शन का भी असर नहीं हुआ। विट्रेक्टोमी किया तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट नहीं मिला इतना, विजन शायद 70% चला गया राइट आई में उनका। तो डॉक्टर ने क्योंकि कल्चर करवाया जो विट्रस का, तो उसमें जो जो मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे वो सभी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट थी उनके लिए, तो इनका इफेक्ट नहीं मिला। फिर भी वो उदास नहीं हुए, अगर मैं होती तो हो जाती, क्योंकि अपनी दृष्टि में, लेकिन वो इतने वो है ईश्वर पर निर्भर करते हैं ना, तो मैंने उनसे सीखा है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी एक आंख तो सलामत है, उसको अब मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, इसमें बस ऐसे क्लियर नहीं दिखता है। तो और ड्राइविंग का प्रॉब्लम हो गया, तो क्योंकि राइट साइड से देख नहीं सकते हैं उसका रिवर्स, तो लिमिटेशंस हो गया बाहर आने जाने का। और टाउन में ऐसा छोटा है तो दिन में चला लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने खुश रहते हैं कि उनको कभी भी वो चिंता उनके चेहरे पर भी नहीं आती है। तो अगर भगवान ईश्वर सबके ऐसे मन दे दे कि जो जो भी है वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हेल्थ के भी इश्यूज कुछ भी आ सकते हैं अभी भी। हाँ, बाकी तो बस साथ समय बिताते हैं आनंद से, और आप सब से मिलके ज्यादा आनंद में रह सकते हैं। डॉक्टर साहब भी आते हैं तो बोलते हैं कि आप बैठिए, मैं अपना ये दूध या कॉफी या चाय में अपने आप शाम को बना लूंगा, तुमको आनंद मिलता है। तो इसी तरह अच्छी तरह से मुझसे, मैं कोई प्रेरणा तो नहीं दे सकती अपने लाइफ से, लेकिन टिप्स ऐसे कि खुश रहिए, हेल्दी खाना खाइए, और बच्चों के साथ भी दूरी हो या नजदीक हो, एडजस्ट होके सबको, सबका नेचर को एक्सेप्ट कर लीजिए लेंगे ने, तो हमें आनंद मिलेगा जीवन में, ज्यादा तकलीफें या संताप नहीं रहेगा। बस यही बात है मेरे। Thank you. So we have the two opposites here. One, our daddy, blessed with ideal life. Yes. He did whatever he liked. He lived the way he liked the best. And his end was peaceful. Yeah. No problems. And he knew On the other hand, the other person is having serious issues. Fortunately, it is with one eye, not both. Correct. I have a relative who lost both his eyes, and the spouse has lost both ears. Oh. Husband and wife live together. One cannot see, the other cannot hear. It is like dosti. Something like that. So, and still they are also, we again come back to the same thing. That pain is real, suffering is not. सरला जी आप बोलिए, हेरिडिटरी है वो? यस, ये हेरिडिटरी है ग्लूकोमा। जो डॉक्टर साहब तो रेगुलर अपने, उनको स्पेक्ट है, चश्मे लगे हुए हैं, तो रेगुलर चेकअप, वैसे नंबर तो उस टाइम भी प्रेशर तो चेक करते ही है वो डॉक्टर्स, लेकिन 7 इयर्स बैक उनको जब यहाँ उन्होंने चेकअप करवाया, तब जो है हमारी बेटी जैसी कि अंकल आपको अब आपके जो प्रेशर है ग्लूकोमा, जिसमें वो फ्लूइड बनता है, सभी का बनता है आंखों में, लेकिन वो ज्यादा है, उनका प्रेशर से आपको नुकसान होगा। तभी कुछ हुआ नहीं था। हाँ, नुकसान तो आपको पेरीमेट्री कंप्यूटराइज, क्योंकि वो नहीं यहाँ होता था, उससे उस टेस्ट करवा लीजिए और ड्रॉप्स आप शुरू कर दीजिए। तो फिर राजकोट गए थे, लेकिन वहां भी वो स्पेशलिस्ट नहीं मिला, लेकिन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे उन्होंने ड्रॉप्स दिए थे। तो ड्रॉप्स का जो डोजेस बढ़ता जाता था, और फिर कभी कभी बाद में ऐसा होता था कि जो नॉर्मल लेना चाहिए उससे बहुत ज्यादा रहता था। तो बोले कि कभी भी आपको ऐसे शटर बंद हो जाएगा, जैसे
साइड में से शटर, तब तक ख्याल नहीं होता है आपको, ड्राइविंग में भी ख्याल नहीं होगा कि आपको ये दिख नहीं रहा है। और तो आपको ये प्रेशर रिमूव करवाना चाहिए। तो वो क्या जो बनेगा, ये इसको हम कर देंगे तो वो अंदर चला जाएगा, आई बॉल के हमारे विजन के जो नर्व्स होती है उसके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने, मेरे दामाद, मेरे बेटे, सबने उनको, वो बोले कि नहीं मुझे नहीं करवाना है, लेकिन ये आना था कि वो हमने सोचा कि अरे डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो हमें रिमूव करवाना चाहिए। तभी वो भी, वो परमानेंट रिमूव नहीं होता है प्रेशर, वो बनता तो है, ड्रॉप्स तो डालने ही पड़ते हैं, लेकिन आईबॉल पर उतना जो अभी है वो उसको हमें रिमूव करना होगा। तो इसीलिए एक हाँ, इसकी कोई नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं है इसको? नहीं उसका कोई नहीं है, सिवाय आयुर्वेद में कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस है कि कुछ उसमें उसमें जो है, उसमें आती है आम्लती रसायन, जिसमें आंवला बोलते हैं, उसका रसायन, जैसे रसायन चूर्ण आता है और एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है। तो ये आंखों के लिए एक आम्लकी रसायन है, एक त्रिफला घृत है, त्रिफला से सिद्ध किया हुआ घी वो, और दूसरा और त्रिफला गुगलू टेबलेट्स, वो सब लंबे समय तक अब हमें चेकअप तो करवाना चाहिए। हेरिडिटरी हमारे बच्चों को भी 40+ हो जाए तब उनको भी ये प्रेशर रेगुलेट, लेकिन आयुर्वेद में है, लेकिन होने के बाद का कोई आयुर्वेद में प्रेशर को कंट्रोल करने का कोई ड्रॉप्स या कुछ नहीं है। पहले से ये आप रखे तो हेरिडिटरी हो उनको शायद फायदा होता है, शायद मैं बोल रही हूँ, क्योंकि साहब को वो भी दवाइयाँ शुरू कर दी थी। वो जो अभी जो आयुष मंत्रालय के सचिव है डॉक्टर वैद्य राजेश कोटेचा, जो प्रॉपरली हमारे कोडिनार के हैं, और उनका जयपुर में बहुत बड़ा चक्रपाणी वो है वेलनेस सेंटर, तो उन्होंने, वो बड़े भाई मानते हैं, उन्होंने सब पार्सल करके वहाँ की सब दवाइयाँ भेज रहे थे, वो भी 3 साल से तो खा रहे थे, लेकिन जो था उसमें कुछ कमी नहीं हुई थी, लेकिन प्रेशर फिर भी तो बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने डिसीजन लिया है कि मैं ड्रॉप्स चाहे कितने भी टाइम बढ़ेंगे मैं डालता रहूंगा, लेकिन अब मुझे रिमूव नहीं करवाना है, चेकअप करता रहेंगे सब ऐसा। तो जो आएगा हेरिडिटरी जो है वो मिलेगा, तो ये भी स्वीकार तो करना ही है हमें, हमारे वो तो है, हाँ, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ये तो कंट्रोल हो सकता है, उसमें ऐसा डेंजरस नहीं है, लेकिन ये जो है, और दूसरा एक डिजीज है अल्जाइमर्स, वो भी है, हाँ वो भी हेरिडिटरी ज्यादा है, तो हेरिडिटरी है। तो बाकी तो बहुत ओल्ड एज में होता है किसी किसी को, लेकिन हेरिडिटरी है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि पिताजी को हो तो आता है। तो उसके लिए भी ब्रेन को सक्रिय रखना होगा पहले से, जिसके बुजुर्गों में है, पेरेंट्स में हेरिडिटरी है, हेरिटेज में, तो ब्रेन को सक्रिय रखेंगे तो वो सिकुड़ेंगे नहीं, जो ब्रेन के मेमोरी सेंटर्स के जो है न्यूरॉन्स, उसके लिए ये करना होगा एक्सरसाइज। उसमें सबसे अच्छा है स्तोत्र याद करो, गाना याद करो, गाना गाओ ऐसा तो सक्रिय रहे। नमस्ते सेठिया साहब, आपको नमस्ते जी। चलो पूरा हो गया। थैंक यू सरला जी। अभी मैं कमल सेठिया तरफ ही बढ़ रहा हूँ, वो तो बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो भी स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा बात दे रहे हैं और एडवाइस भी देते हैं। हाँ, तो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को अपना स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, और कोई नुक्स है, कोई अच्छा दवा, छोटा सा घरगुती बोलते हैं ना हम लोग, घर के अंदर ही हम लोग कुछ बना, घरेलू नुस्खे, हाँ वो नुस्खे ऐसे कुछ है, वो आप अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब ड्रग्स ज्यादा लेना भी अच्छा नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल। उसमें एक मेरे पिताजी जो लेते थे, वो बहुत सालों से एक च्यवनप्राश और एक रसायन चूर्ण, अच्छा, बहुत अच्छी फार्मेसी का कोई भी हो, रसायन चूर्ण, ये दोनों सभी को लेना चाहिए। बहुत फायदा। अच्छी फार्मेसी का च्यवनप्राश
और ये रसायन चूर्ण जो ब्रांडेड कंपनी हो या कुछ भी हो, लेकिन ये शास्त्रीय योग है जो ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने जिसको उससे फायदा रिकमेंडेड क्या है? किया है। नहीं, उससे फायदा क्या है स्वास्थ्य के लिए? उससे एक तो एजिंग प्रोसेस के जो भी तकलीफों है, मेरे पिताजी को कैटरेक्ट भी नहीं आया था ओके। उनको। हाँ, इतनी 87 में वो पूरे स्वस्थ थे, सिवाय के उनको ये उस 1 महीने पहले न्यूमोनिया हो गया था। उसके बाद उनको ये 2-3 बार लो बीपी, तो उनका अचानक लो बीपी हो जाने से उनको हार्ट के ऊपर असर हुई, लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं था पिताजी को। अच्छा। तो हाँ, तो वो बहुत आयुर्वेद में मानते थे और वो बहुत नियमित लेते थे और एकदम नॉर्मल फूड, फ्रूट्स ज्यादा खाते थे ओके। और कच्चा ज्यादा खाते थे, टमाटर वगैरह। रॉ तो फूड। रसायन चूर्ण, हाँ, रॉ फूड। रसायन चूर्ण और च्यवनप्राश, बाकी ये सभी को लेना चाहिए। अच्छा। अभी मैंने शुरू नहीं किया है, मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर साहब मैंने मंगवाया तो है कि अब शुरू कर Physician देते heals हैं। thyself. जी। They used to say there is a proverb. Yes, I too take Chyawanprash and Yes. triple R tablets. हाँ, ये भी I take on a daily basis. हाँ, हाँ, वेरी नाइस। It is for preventive. It is not a cure against any existing sickness. It ओके is for continuation of good health. ओके, आई गॉट इट। कमल सेठिया जी, आप कैन यू एनलाइटन अस अ लिटिल मोर ऑन घरगुती नुस्खे Sure, sure. and whatever you have to, may focusing on the senior citizens as to what they Yeah, can yeah. to have a better. I'll quickly go through because time is limited. कोई बात नहीं। And there are other speakers also. No problem. So, see the challenges. That's what you Yeah, referred to. serious. What are the challenges before the senior citizens and how to tackle them? This is the main issue. And as Mr. Raman rightly pointed out, Category. they are physical, mental, financial, and अभी बहन ने एक और एंगल उसमें जोड़ा है, that is spiritual, कि आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ये सब आपस में जुड़े हुए, इन सब का एक दूसरे पे बहुत असर पड़ता है। लक्ष्मण जी, मैं आज मेरे चेहरे में कोई फर्क दिखाई दे रहा है? आपका तो एकदम तेजस ब्राइट फेस है आपका, अच्छा लगता है। नहीं सर, पहले से फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं 10 दिन अभी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हरिद्वार गया हुआ था। ओके। आई हैव अंडरगॉन, वेट कम हुआ आपका, ऐसा हाँ, लगता वेट है कम चेहरे हुआ। से। आई हैव लॉस्ट 5 kg इन क्योंकि 10 days। आपका चेहरा ऐसे था। फूला हुआ रहता था। चेहरा तो बिल्कुल। कितने? हाँ, अच्छा, और एक चीज और है, मैंने वहां जो प्रवचन सुना, बोले कि भाई जीवन में जीवंतता होनी चाहिए। यस। तो अपना अपीयरेंस जो है वो अच्छा रखो। हाँ। बाल काले किए मैंने, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा आहा, नमस्कार। अपने को खुशी मिलती है, अपने को खुशी मिलती है। और दूसरे एक चीज और है, हाँ, अपने को खुशी मिलती है। अब देखिए, एक एक करके बात कर लेते हैं। फिजिकल में तो यह है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करती रहनी चाहिए अपने शरीर की। मतलब जैसा आपने कहा कि हमारे कुछ बीमारियां जो हैं वो जेनेटिक हैं, हमें आनुवंशिकता से मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें एनकाउंटर नहीं कर सकें। तो यदि हम नेचुरल जीवन जिएंगे, घरेलू, और देखिए सर दर्द के बड़े घरेलू उपचार हैं, उसमें यदि आप रिदमिक ब्रीदिंग भी करेंगे तो सर दर्द ठीक हो सकता है। फिर छोटा मोटा बाम लगा लीजिए आप, कुछ बिना दूध वाली चाय पी लीजिए, जो चाय भी एक बहुत बड़ी दवाई है। ब्लैक टी, यस। तो ये सब चीजें हैं। बिफोर वी go to the pills, we must try these home remedies, because
ingestion of too many tablets will always have some adverse effects at this age. पहले डॉक्टर ये बोलता था कि अभी तो आपकी एज कम है, इसलिए हम आपको ये दवा दे सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में है अभी ताकत। तो ये वाइटलिटी और विगर वाली जो बात है, ये कल मैं डिटेल्स में मेरे सेशन में दूंगा। कल 11 बजे एक सेशन है जिसमें मैं प्राणिक एनर्जी और वाइटलिटी पे बात करूंगा। ओके। तो उस पर यदि डिटेल्स में सुनना चाहें तो वहां सुनिएगा। लेकिन हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखिए जैसा है आपने अभी बताया था रमन जी ने कि some people have already attained that age where the disabilities have started, some people are in the process of getting it। तो एक तो मैं आप सबको ये कहूंगा कि कभी जाकर आसपास के किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दें। आप ओपीडी में चले जाएं, आईपीडी में चले जाएं, एक वॉलंटियर के रूप में आप एक दिन वहां सेवा दें। आप जब लोगों को परेशानी में देखेंगे और किसी का पैर कटा हुआ है, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, किसी की कोई बड़ी समस्या है, कोई अभी सर्जरी से गुजरा है, तब आपको पता चलेगा कि मेरे से भी बुरी स्थिति में लोग हैं और मैं तो बहुत ठीक हूं। तो कुछ पॉजिटिविटी आएगी और ये पॉजिटिविटी हमारे सोच और हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। थोड़ी सेवा का भाव हमेशा रहना चाहिए क्योंकि आज हम सबको एक दूसरे से कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिल रहा है। और यदि हम इसी तरह से नॉलेज शेयरिंग करें या अपने जो भी जिस क्षेत्र में आप अनुभवी हैं या आपने विशेष योग्यता हासिल कर ली है उसका फायदा दूसरों को देंगे तो मन में बड़ी खुशी होगी और ईश्वर आपकी मदद करेगा। मैं इस बात में बहुत विश्वास रखता हूं कि ये कर्मों की खेती है, इसकी कोई फिक्स टाइम नहीं है कि ये 3 महीने में फल देगी या 4 महीने में फल देगी। कभी के किए हुए कर्म कभी भी फल दे सकते हैं। तो आप सत्कर्म करें और हमेशा जो है अच्छा सोचें, अच्छा करें दूसरों के लिए, आपको अवश्य आपके जीवन में भी कुछ अच्छा घटित होगा। दूसरा यह है कि साइकोलॉजिकल और मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ी है रिलेशनशिप्स। हाँ अजय जी, आपको मैंने देखा अभी, बहुत अच्छा लगा, आपसे भी सुनेंगे। नहीं, मैं तो आपने जो पिक्स भेजी थी सर हरिद्वार की, वो देख के रियली आई फाउंड के क्या ब्यूटीफुल उन्होंने उसको किया हुआ। एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि आदमी बीमारी तो ऐसे ठीक हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हम आपस में एक दूसरे को देख के खुश होते हैं ना। हाँ, उससे भी बीमारी ठीक होती है हाँ, उससे भी ठीक होती है। वही कह रहा ना, शेयरिंग कर रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि हाँ, परिवार में रिलेशनशिप्स अच्छी होनी चाहिए। रिलेशनशिप आप यदि अपने परिवार में रिलेशनशिप्स को अच्छा रखेंगे तो आप बहुत सी समस्याओं से वैसे ही निपट जाएंगे क्योंकि देयर शुड बी समबडी टू टेक केयर ऑफ यू। अब हम यदि एक्सपेक्ट ज्यादा करें और दें कम तो ये कैसे चलेगा। तो हम अच्छा अक्सर ये होता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में बैठे हुए कुछ तो खुद तो करते नहीं कुछ, और दूसरों को करते हुए देखते हैं तो उनमें नुक्स निकालते हैं, कमी निकालते हैं। हम तो ऐसे करते थे, तुम ऐसे कर रहे हो। यहाँ पे इरिटेशन शुरू होता है और यंगर जनरेशन थोड़ा सा आपसे दूर जाने लगती है। इसके बजाय यदि आप उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें कहें भाई कोई मेरे लायक काम मुझे बता दो तो मैं उसमें मदद कर दूं, इतना कहना ही उनके लिए बहुत है। और यदि आप कुछ करते हैं तो और भी अच्छा है, जिससे ये है कि आपको एक तो लगे कि मैं फालतू नहीं हूं, आई एम वर्थवाइल। दूसरा ये कि घर वाले भी ये जाने कि भाई ये हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग है, इनसे हमें लाभ मिलता है। एक देखिए गिव एंड टेक वाली बात होती है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें हमारा जो दिनचर्या है उससे बहुत रेगुलर रखना होगा। अपने आप को फिट रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। जैसे बताया कि रॉ फूड और जो कॉम्प्लेक्स फूड से बचिए, समय पे उठिए और देखिए सुबह के 2 घंटे हमें अपने किसी भी नजदीकी पार्क में बिताने चाहिए। खाने पीने से ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन।
हवा, शुद्ध हवा। और एक चीज और है कि जब हम प्रकृति के बीच में होते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, खुश होते हैं। आसपास बच्चों को खेलते हुए देखिए, बुजुर्गों को चलते हुए देखिए, और आप वहां बैठ के प्राणायाम कीजिए, थोड़ी वॉकिंग कीजिए। ये फिजिकल एक्टिविटी आपको कभी अल्जाइमर का शिकार नहीं होने देगी। क्या बात ये है। सब ये सब हमारी चैनल्स ब्लॉक होती हैं तब प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो हमारे मेजर सिस्टम्स हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और एक प्राणिक सिस्टम और है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। उससे भी आगे जो आध्यात्मिक स्तर पर है, या जिसे हिंदुस्तानियों ने ज्यादा अच्छी तरह समझा है, वो है प्राण। जो प्राणिक हीलिंग प्राणिक, बोलते हाँ। हैं वही नहीं, प्राणिक हीलिंग तो है दूर हीलिंग से वो आप तो किसी अलग को है। करें। हाँ, नहीं नहीं, हम तो खुद अपने प्राण को प्राणिक एनर्जी, पुष्ट करना हाँ चाहते हैं। एनर्जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्राण को, आपकी जो प्राण की एनर्जी है, खुद बढ़ाइए। किसी दूसरे से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्राण क्या है? देखिए, बहुत एक संक्षेप में बताना चाहूंगा कि एक हमारा शरीर है, शरीर निर्जीव है। शरीर में जान आती है जब उसमें प्राण हो, आप समानेंगे। और प्राण किस पे डिपेंडेंट है? श्वास पे। 5 मिनट सांस मत लीजिए, प्राण निकल जाएंगे। तो श्वास ही प्राण का पोषक है। और यदि हमारे प्राणिक एनर्जी अच्छी है तो वो हमारे पूरे शरीर की रिपेयरिंग और हर हर मतलब हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम और ये सारे सिस्टम्स हैं, ये तब अच्छे होते हैं जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। हमारे शरीर, देखिए, बच्चों में तो उनकी एक्टिविटी रहती है तो शरीर में गर्मी होती है, गर्मी होने से खून पतला होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्रीदिंग अच्छी होती है। लेकिन हम लोग जो हैं, जो हम इंडोर रहते हैं, फिजिकली थोड़े से डिसेबल्ड हैं, या मेंटली हम मेंटल ब्लॉक है कि क्यों जाएं बाहर, क्यों क्यों एक्टिविटी करें, क्या लोग क्या कहेंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो यदि हम एक्टिविटी नहीं कर सकते तो कम से कम फास्ट ब्रीदिंग करें। ये भी हमारे शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा और ऊष्मा पैदा करेगी। और ये जो ऊष्मा है, इससे हमारे ब्लड में थोड़ी तरलता आएगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्रीदिंग अच्छी होगी, और इससे आपकी जो प्राण शक्ति है वो भी बढ़ेगी। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन हर सीनियर के लिए आवश्यक है। सुबह शाम 2 बार आधा घंटा के लिए। और ये आधा घंटा आपका कैसे बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। उस आधे घंटे में यदि आपको नींद भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई म्यूजिक चला के मेडिटेशन कर सकता है, कोई शांत कमरे में बैठ के कर सकता है। मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल एक शरीर को स्थिर करके और मन को स्थिर करने का प्रयास करना है। विचार बहुत आते हैं, और आजकल इस उम्र में बुरे बुरे विचार आते हैं, मेरा क्या होगा, मैं क्या, मतलब ये सब चीजें जो है, देखिए, समस्या का तो हल है लेकिन इमेजिनरी प्रॉब्लम का कोई हल भी नहीं है। हाँ। हाँ, तो जब आएगी समस्या आप उसका सामना कर सकेंगे, ये विश्वास रखें। और बेकार के थॉट्स को अपने पास नहीं आने दें। मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपूर्व शांति मिलेगी, और वो आपके फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ठीक करेगी। दिस इज ऑल आई हैव टू से। एक्सीलेंट कमल जी, बहुत ज्ञान आपने बांटा है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे। आपने कहा कि सेवा में लग जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, व्हेन यू सी समबडी हैज नो प्रॉपर लेग, तो हम अपने आप को सोचते हैं कि हाउ हाउ गुड वी आर। यस यस। अदरवाइज वी कीप क्रिबिंग, यार मेरे पास नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, बट देन यू हाँ अदर्स, so it's a relative positioning the entire thing. अभी आप समझो कि मुझे एक हॉस्पिटल में जाके देखना है, वो लोग अलाउ करेंगे? क्या सेवा कर सकते हैं ऐसे? They हाँ, won't नहीं let नहीं, us मैं inside. मैं मैं दूसरी चीज कहता हूँ, मैं एक चीज और कहता हूँ कि आप किसी एनजीओ में जाएं। एनजीओ में जाए, ओके। हाँ, कोई भी, आप यदि देखिए, आप प्रोफेसर हैं तो कोई लेक्चर दें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप अपना रिज्यूमे लेके किसी भी एनजीओ को भेज दें। दे आर लुकिंग फॉर सच ब्राइट एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल हु कैन गिव द वर्ड्स ऑफ विजडम टू देयर पीपल। अच्छा, वहां पर हॉस्पिटल्स में भी ऐसे सेशंस होते हैं, हाँ, और मुझे कई जगह बुलाया जाता है
जहां पर मैंने जेल में जाकर, प्रिजन्स में, ओके और उन कैदियों को भी जो है कुछ इस तरह की सीख दी है कि कैसे अपने जीवन को सुधारें और अपने मन में इतनी गिल्ट न रखें। कुछ किसी कारणवश आपसे कोई गलती हुई होगी, लेकिन अब सुधारें। ब्यूटीफुल। हाँ मकसद ऐसा होना चाहिए कि हमारे उम्र के लोगों को ये जो दवा टैबलेट वैबलेट जो है जितना कम हम कंज्यूम करें उतना अच्छा। हाँ हाँ, इसके लिए घरेलू नुस्खों पे। हाँ, जहाँ जहाँ तक हो, अभी जो हम अपने वर्किंग डेज में कुछ टैबलेट स्टार्ट किया वो जारी है। इज देयर अ वे टू स्टॉप दैट? उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी आदमी को ब्लड प्रेशर है, आपने बोला कि प्राणायाम करो, ये करो, कंट्रोल में आ जाता है। चीनी का होता है, किसी को शुगर का होता है, तो उसके लिए भी अगर फूड इनटेक, एक्सरसाइज, वॉक, उससे कंट्रोल होता है। वो हमने खुद महसूस किया है। तो ये हो सकता है, रिवर्सेबल है। बट यही हम लोग एज ए रूटीन करते जाएंगे। आप मोरलेस यू आर सेइंग दैट वी नीड ए रेजिमेंटेड लाइफ। एक ही टाइम पे उठो, ये रूटीन में करो, जरा बाहर जाओ, अच्छा हवा खाओ, कम, बिकॉज वी आर ऑल रिटायर्ड पीपल बाय एंड लार्ज। और उसी के हिसाब से जो हमको सेवा करने का मौका मिलेगा वो भी करते रहेंगे, तो सम वॉट वी फील गुड अबाउट इट, ऑटोमेटिकली द फील गुड फैक्टर keeps coming in. And if you're financially well off, you can contribute for education. आप किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में बोलिए कि मेरी तरफ से आप स्कॉलरशिप कर दीजिए, मेरी तरफ से आप बुक बैंक बना दीजिए, फ्री स्टेशनरी दे दीजिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। स्कूल वाले आपको बुलाएंगे। No, we were discussing this pleasure of giving जो है उसका एक अलग pleasure of giving है। अच्छा, और एक लास्ट बात कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ये सीनियर सिटीजन्स फोरम, इससे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसे ही लोग हैं और मैं आप सबसे सीखता भी हूँ और अपनी जानकारी को बांटता भी हूँ। तो हम अपने जो शेयरिंग है, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके समाधान खोजते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सीनियर्स ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और ऐसे ही छोटे ग्रुप्स आप बना सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, सोशल मीडिया भी है, उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अच्छा, एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो व्हाट्सएप का कुछ ज्ञान है, उसमें ये है कि ये जो चीज की बात करेंगे उसी के फायदे गिनाएंगे। तो च्यवनप्राश अच्छा है, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने च्यवनप्राश ज्यादा खा लिया तो मुझे एसिडिटी हो। तो हाँ, क्योंकि उसमें नमक है, वो आंवला है, उसमें खटाई है। तो वैसे तो आंवले की खटाई बहुत नुकसान नहीं करती है, लेकिन मुझे किसी कारण से कर गई। तो ये डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एनाटॉमी कि किसका सिस्टम कैसा है। तो ये सब नाप तोल के किया जाना चाहिए। वैसे हमारी रसोई में नींबू, अदरक, धनिया, हल्दी, लहसुन, ये ऐसी चीजें हैं जो घरेलू औषधियां हैं। यदि इनका ठीक से उपयोग किया जाए तो इनसे भी हम बहुत से चीजों को ठीक कर सकते हैं। सॉरी, मैंने ज्यादा समय ले लिया। अच्छा लगा कमल सेठिया जी। Excuse me. Excuse me. 1 minute, I would like to recommend most of us, if you can schedule your time accordingly, कल सुबह 11 बजे इनका एक सेशन है। We will get more ज्ञान out of it and something better for us. So kindly schedule it such that you are able to participate. Yes, definitely. I wanted to know, could he suggest some good NGOs? Beg your pardon? Say that again. Could you suggest some good NGOs? NGOs. Yeah. Oh, it depends on your area where you are. See, there are NGOs for orphans, disabled people. Like in Jaipur, we have Jaipur Foot. They provide artificial limbs Yes. to the disabled. So I am associated with that. I am associated with SOS Balgram. Then there is one Mahavir Cancer Society. Okay. There are many places. I mean, it depends on which location. Where are you put up, Dolly ji? Delhi, Punjabi Bagh. Achha, Delhi, we have no idea. I mean, someone from Okay. with you. Okay.
and you can Okay. search on Google. गूगल में मिल जाती है. ठीक है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. जी. बहुत सी चीजें सीखने को मिली हैं आपसे. और Thank you. कल का सेशन भी हम जरूर ज्वाइन करेंगे. Please do. Thank you. थैंक यू. And my takeaway is that, you know, the whole of us, all of us here, if we can stop having any of these drugs, वो कम करके 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 इसको ना ही कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, is my personal view. And It's okay, but we can't. I have a sad story to tell. Okay. Because one of my friends was using some inhaler for lung deficiency, and he took some exercise, this kind of thing or something, some Ayurvedic drug or something, and he felt better and he stopped taking that inhaler, which was advised for him. As long as you live, you should take it. But he thought that he is now cured of everything. I doesn't need it. He stopped it. He didn't tell any of us. We didn't know that. Suddenly, his body was turning blue. He was having breathing difficulty, this and that. When we all rushed to him, he then told us, last 6 months, I stopped my inhaler. And when we took him to a doctor, the doctor simply scolded us. How come you fellows calling yourself friends, you failed to notice that this man has done such a stupid thing. So, if somebody prescribes that you take it, come to me if you have any troubles. That means you have to take it. But one doctor wrote to me, take Urimax 0.4 mg forever. I have that prescription. I take it every day. Okay, Raman sir, we will have a chat offline. I don't know. I get it. I get that. But so stopping medicines is a thing that has to be done very carefully. No, everything has to be done carefully, because doctors themselves, some of the doctors have themselves said, when you visit a doctor, you become a patient. Until then, you are not a patient. The doctor gives you a pill, and then you are married to that forever. Such doctors are also there who say that don't get it's not necessary. Okay, it can be over a period of time. उसके बाद अलग से करेंगे, not in this session. So we will go ahead with more views coming out from any of the others. Who is willing to share his or her thoughts in this space? We are already 1 hour into it. Anybody? No, sir. Time is over. हाँ जी. Aruna ji, you were saying something? No, sir. Acha. No, sir. I got so much knowledge from all these people, sir. So, okay. Lalita ji has raised her hand. Go ahead, ma. Go ahead. कमल सेतिया जी, आपने तो बहुत 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 ही इंस्पिरेशनल टॉक दे दिया, एंड आई एम फुल्ली विथ योर व्यूज. As long as you don't go into these drugs and chemical things, your body will take care of itself. Your body is intelligent enough to take care of itself. Until and unless it's an emergency case which has to be fixed, like an accident, like a broken bone. You cannot wait for your body to fix it. First fix it, and then let your body take the other job. So the wonderful thing is, go with your body, go with what your mind says. Until and unless, as I said, it's an emergency fix. अपने आप शरीर, it will get back to its normal. Give it some time. 4 दिन दो. एक फीवर हुआ, एक क्रोसिन खा लिया. That is not what we should do. फीवर हुआ तो रहने दो फीवर, 2 दिन देखो क्या होता है. If still the fever rises and doesn't come down, then you can take something. Till then, don't do. There are many people who एक सर दर्द हुआ, एस्पिरिन खा लिया, एक फीवर हुआ, क्रोसिन खा लिया. That I feel is not the done thing. So what Setia ji said, be with nature, enjoy your life, live your life, उसी में है. So thank you so much. हाँ, लक्ष्य, मैं थोड़ा सा मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ. हाँ अजय जी बोलिए.
नहीं, जो कमल सेठिया जी ने अपना एक्सपीरियंस वहाँ का बताया, वो दैट वाज रियली गुड एंड वेरी इंस्पायरिंग, एंड वी शुड डेफिनेटली, जो जिसकी हैसियत हो जैसा कर सकता है, अदरवाइज वहाँ जाना तो बहुत लंबा होता है। बट इवन देन मेरा तो फंडा बहुत क्लियर है सर। उसमें क्या है, भगवान ने हम छोटी से छोटी चीज भी आप ले लो, राइट फ्रॉम द आंट, जो कीड़े मकोड़े से लेकर हम इंसान जो 6.5 फीट के हैं, इनको शेल्टर, इनको सेफ्टी अपने आप दी है भगवान ने, बहुत कुदरत ने दी। बढ़िया। आप सिंपल एग्जांपल है, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, तो वो कहते हैं कि ऑरेंज का छिलका इतना पतला है, एप्पल का मोटा, क्या नाम है, ऑरेंज का मोटा है, एप्पल का पतला है। क्या रीजन है? क्योंकि ऑरेंज जो है उसके अंदर से सॉफ्ट है और एप्पल जो है वो अंदर से हार्ड है, इसलिए उसका पतला छिलका दिया है। तो मतलब सेफ्टी इस तरह से इंसान को अपने आप ही दी हुई है। तो इफ वी डू अकॉर्डिंगली, तो अपने जैसे हम अपना अच्छा काम करते जाएंगे, अपना ये जो अपने आप ही हीलिंग होती रहेगी। डॉक्टर पे जाएंगे, वो तो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा कि यार भैया आज मैंने 500 रुपये फीस लिया है, तो मेरे को कुछ लिखना है। और मेंटेलिटी लोगों की देखो ये है कि डॉक्टर ने अगर बहुत महंगी दवाई लिखी तो अरे साहब क्या बढ़िया डॉक्टर है, देखो उसने वो बड़ी ढूंढ डाल के वो अपना मेडिकल स्टोर भी बता देगा। आपको जितने पैथोलॉजिकल टेस्ट है वो भी उनके सब अपने फिक्स हैं। तो मेरी फैमिली में भी बहुत डॉक्टर है, आई नो कि वो कहते हैं कि है कि मिशन मिलता है, इसमें क्या है, हमारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप इतने बड़े डॉक्टर बने हैं एंड पीपल आर कमिंग एंड स्टेइंग इन लाइन, हमारे पास आते हैं तो हमें तो वो सब कुछ है, वो हमारी डिजर्विंग है। हम भी आते हैं, बिल्कुल डिजर्विंग है, आपने इतना खर्च करके इतने बड़े डॉक्टर बने हैं। तो बेटर ये है कि अपना हीलिंग जो है नेचुरल करें। तो आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर। ये मैं सरला जी को अच्छा नहीं लगेगा हम ऐसे बोलेंगे। नहीं सलाह जी क्या, जितने डॉक्टर है, इवन डॉक्टर सेठिया, कमल सेठिया जी जो है, ही इज ए पैथोलॉजिकल डॉक्टर। यस, ही इज और पैथोलॉजिकल डॉक्टर, इनको आई नो हिम पर्सनली एंड नो हिम फ्रॉम जयपुर, दैट ही हैज a lot of things are to be done in as a doctor। लेकिन वो खुद ही देखो मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को, आज देखो उनकी जो है ग्लो जो है देख के बड़ा खुशी हो रही है। रियली बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीजें बहुत सही है। डॉक्टर्स मेरे मेरे खुद के ही है, मेरे जीजा डॉक्टर है, मेरा कजन डॉक्टर है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट देम, वो भी पहुंचे हैं इतनी मेहनत करके, ऐसे थोड़ी पहुंच जाता है डॉक्टर बनना। नहीं सही। जहाँ डॉक्टर की जरूरत है तो इमीडिएटली जो जिसे कहते हैं इमरजेंसी, उसमें सेठिया जी की जरूरत है। बट इन द रूटीन टाइम आपके सिर में दर्द है, छोटी मोटी ये दर्द ये बॉडी में, तो अपने आप ही हो जाती है, भगवान करता है अपने आप ही। अजय जी, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। देखिए, पहले तो थी अलग अलग थेरेपीज, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड थिंग्स लाइक दैट, नेचुरोपैथी। अब एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, वो है वेलनेस। मतलब ये है कि उसमें यह है कि पेशेंट कैसे ठीक होगा वैसे ठीक करो, और सारी थेरेपीज को कंबाइन करो। मैं किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब उसमें एलोपैथ, आयुर्वेदा, होम्योपैथी सभी तरह के डॉक्टर शामिल हैं, किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। वो जितना अच्छा बैलेंस बना सकते हैं आपके हैं सारे पूरी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का, और आजकल सभी डॉक्टर्स वेलनेस की तरफ ही कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं, आज मान लीजिए किसी के शरीर में कैंसर डेवलप हो रहा है, तो उसकी डायग्नोसिस जरूरी है, जहाँ सर्जरी की जरूरत है वहां जरूरी है, लेकिन वो नौबत ना आए है। मैं प्रिवेंटिव की बात करता हूँ। आज हमारी जो स्थिति है, ये आज से कल थोड़ी सी और खराब होने वाली है। मैं जो अभी वहां जाकर आया हूँ, मैंने 5 किलो वजन घटाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 5 साल जवान हो गया। तो हम अपनी उम्र को पीछे धकेलते रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम अपने को आगे वाली अपनी उम्र के लिए तैयार करते रहे।
ये मैं कहना चाह रहा था। Please, very well said. Anyone would like to share anything more? क्योंकि अभी we are already we have consumed our quota of time. But anything important anybody has to say, please, next few minutes we can listen to you. Not to forget tomorrow 11 a.m. session of Kamal Setia ji. I think it is going to be a very nice session for all of us, beneficial. So we should definitely make it. You're all welcome. Chalo. So ठीक है. So if others have not much to say and they have heard you and they have observed things, that is the best thing that can happen. So thank you very much. We will meet again sometime next week. Mr. Dr. Sarla ji के पति भी आए हैं. Good evening, sir. How are you? Good evening. Good evening. So we will definitely connect tomorrow at Kamal Setia's session at 11 a.m. and let's see how it goes. Because if nothing else, there is nothing to lose for us. We will only benefit. हमें फायदा ही होगा, मुनाफा ही होगा. हम आगे ही बढ़ेंगे विकास की तरफ. Thank you. Thank you so Thank you, much. Lakshman ji. Thank you.